Students, today we'll discuss the topic that is the method of preparation of aryl halides or haloarenes. So in this topic we'll study basically 4 methods, out of which first 3 method are the laboratory methods और fourth one आपका industrial method है. तो जो first method आपका है, we will prepare the aryl halide from silver salt of carboxylic acid and the reaction is Borodin-Hunsdiecker reaction. Second, we will prepare from benzene diazonium chloride, and here we will discuss the 3 reactions: Sandmeyer reaction, Gattermann reaction and Boltzmann reaction. The third method we will prepare by the halogenation of benzene and its side chain, यानी बेंजीन का भी हेलोजिनेशन करेंगे और अगर उसकी साइड चेन है तो उसका भी हेलोजिनेशन कर सकते हैं. देन द फोर्थ मेथड, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें हम स्टडी करेंगे रस्टिग प्रोसेस. सो आई स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, जिसमें बेसिकली बेटा पहले हम जो आपके लेबोरेटरी मेथड है उनको स्टडी करेंगे. और ऑब्वियसली एक चीज़ और है, अगर किसी मेथड के आगे इंडस्ट्री लिखा हुआ है इट मीन्स वो आपका कमर्शियल मेथड है. तो अदर देन दिस मेथड ऑल आर लेबोरेटरी मेथड, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम सिल्वर salt of carboxylic acid, and here we will use silver salt of, particularly अगर मैं word use करूं बीच में that will be better, that is aromatic carboxylic acid. ठीक है, the reaction is said to be Borodin-Hunsdiecker reaction. So see the reaction. I'll take the compound, this one, benzene, at the top COOAG. This is said to be silver benzoate. You have to treat this with Br2 in presence of CCl4. This CCl4 beta, it will act as solvent. Now see the first byproduct, Ag and Br, they will combine to form minus AgBr. Now यहाँ से CO2 गैस इज रिलीज्ड, माइनस CO2, तो बेटा एक ब्रोमीन बचा जो डायरेक्टली यहाँ बेंजीन पे अटैच होगा एंड यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन. नाउ बेटा इन प्लेस ऑफ Br2CCl4 इफ वी विल टेक Cl2CCl4 then silver and chlorine they will combine to form AgCl. CO2 is released, तो यहाँ बेंजीन पे क्या लगेगा आपका Cl and I will get chlorobenzene. But the chlorobenzene here the yield is less. And one more thing, iodobenzene cannot be prepared by this method. So this we have converted, you can say, silver benzoate into bromobenzene or silver benzoate into the chlorobenzene. This is bromobenzene and this is chlorobenzene. So beta this we have done, you can say, the first method of preparation. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आपका सिल्वर सॉल्ट है ये कैसे बना. तो रिएक्शन को थोड़ा बैक डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं सो दैट हमें कन्वर्जन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. दिस इज बेंजोइक एसिड. अगर आप बेंजोइक एसिड को डायरेक्टली सिल्वर मेटल से ट्रीट करेंगे देन व्हाट हैपन्स, दिस कैन बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द सिल्वर. तो डायरेक्टली ये जो रिएक्शन है बेटा ये आपके बेंजोइक एसिड से भी स्टार्ट हो सकती है. दैट यू हैव टू रिमाइंड, इसको ध्यान रखना है. So student, this we have completed the first method of preparation. Now we'll go to the second, in which we prepare the aryl halide from benzene diazonium chloride, or we can say benzene diazonium salts. चलिए now second method. Second, we will prepare them from benzene diazonium chloride. बेसिकली हम इसमें से प्रिपेयर करेंगे. तो द फॉर्मूला इज दिस वन, दिस इज N2, दिस इज Cl. आई मेक राइट दैट, ये N2 और ये Cl. सो बेटा ये बेंजीन और ये N2 है, इट इज डाइएजोनियम, और Cl के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, क्लोराइड. तो बेसिकली हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. ठीक है,
तो सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है यहाँ पे, वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट पॉइंट कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड, सो दैट आगे जो कंटिन्यूटी में रिएक्शन है वो हमें प्रॉपरली हो सके। सो पहले हम क्या करेंगे, दिस वी विल डू द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए दिस कंपाउंड NH2, this compound is said to be aniline. When this aniline is treated with NaNO2 plus HCl, this is said to be the diazotization mixture, and the name of the reaction is diazotization. तो सबसे पहले देखिए क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा। बेटा बाई प्रोडक्ट में काम करते हैं सबसे पहले। तो बाई प्रोडक्ट में सोडियम एंड क्लोरीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। अब मेन प्रोडक्ट जो हमारा बना है जिस पे हमें वर्कआउट करना है, मेन प्रोडक्ट ये देखिए, एक नाइट्रोजन ये और एक क्लोरीन ये। क्लियर? व्हाट आई गेट दिस कंपाउंड N2, दिस नाइट्रोजन एंड दिस Cl। अब आप कहोगे सर ये Cl तो यहाँ पर भी है। एक्चुअली जब बैलेंसिंग करते हैं तो हमें इसका एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वन ही हो। सेकेंडली ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग इज नॉट द मेजर फैक्टर, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। NaNO2 प्लस HCl से आपको क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर डाइएजोटाइजेशन मिक्सचर NaNO2 प्लस HCl ये रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, Na और Cl, ये NaCl और बेटा हाइड्रोजन और NO2 HNO2। तो ये चीज़ मेरे को मिली किससे, डाइएजोटाइजेशन मिक्सचर से। सो डायरेक्टली जो रिएक्शन है वो ऐसे भी दिखाई जा सकती है। वी कैन शो कि हम NaNO2 HCl की जगह हम क्या लिखें डायरेक्टली, व्हाट विल आई राइट, HNO2 और साथ में मैं क्या लिख दूंगा, HCl। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब क्या होगा, सेम यहाँ से ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन और Cl, व्हाट यू विल गेट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? एंड द बाई प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर। अब इसमें देखिए, जब आपने NaNO2 और HCl को मिक्स किया तो NaCl तो पहले ही निकल चुका था, तो यहाँ पर हम माइनस NaCl शो नहीं करेंगे। तो बेस में आपको ध्यान क्या रखना है, लिसन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये हमने बनाया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो दो तरीके से काम करती है। या तो डायरेक्ट आप डाइएजोटाइजेशन मिक्सचर को इसमें रिएक्ट कराओ, अदरवाइज डाइएजोटाइजेशन मिक्सचर से मुझे मिलेगा NaCl और HNO2। NaCl मेरा बाई प्रोडक्ट है, तो HNO2 को मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, एनिलीन के साथ विद HCl, देन आई विल गेट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये N और ये Cl और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये हमने स्टडी किया प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मेन यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो हम अपना जो अगला प्रेपरेशन है वो यहां से करेंगे कुछ इस तरह। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हम करेंगे दैट इज Cu2Cl2 HCl के साथ, देन Cu2Br2 HBr। वन बाय वन करेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है, फास्ट। दीज टू रिएक्शंस आर सेड टू बी द सैंडमियर रिएक्शंस। These two reactions. Now what are the reactions? See out. Benzene diazonium chloride made to react with Cu2Cl2 in presence of HCl और Cu2Br2 in presence of HBr। तो यहां से आपका N2 निकलेगा in both of the cases। और अगर आप यहां पे Cu2Cl2 लेते हो तो बेंजीन पे बेटा आपका क्लोरीन लेफ्ट होगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और Cu2Br2 लोगे देन यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन। बहुत सिंपल रिएक्शन थी। इफ यू विल टेक Cu2Cl2 तो क्लोरो आएगा, इफ यू टेक Cu2Br2 तो ब्रोमो आएगा, और यहां से क्या निकल गया आपका नाइट्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद अगर मैं इफ आई विल टेक Cu plus HCl
or I will take Cu plus HBr, then these are Gattermann reactions. These are Gattermann reactions. प्रोडक्ट है सेम सिंपल, यहां से N2 निकलेगा, मैंने N2 निकाल दिया, N2 N2 ओके। यहां अगर Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, सो आई विल गेट दीज प्रोडक्ट्स, क्लोरोबेंजीन हेयर, bromobenzene here. So here we have done the two reactions. First we have done the Sandmeyer reaction, then we have done the Gattermann reaction, जिसमें हमने बेसिकली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बनाया। अब अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो मैं रिएक्ट करूंगा Ki के साथ, देन सी आउट। व्हेन आई रिएक्ट विद Ki, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट आपको पता है N2 निकलेगा, तो मैंने पहले N2 लगा दिया, ठीक है। फिर पोटेशियम किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, प्लस KCl, और ये जो आयोडीन बचा ये यहाँ पे लगेगा। दिस वे आई गेट द आयोडोबेंजीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली प्रिपेयर्ड द क्लोरोबेंजीन, वी हैव सिंपली प्रिपेयर्ड ब्रोमोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन के लिए हमने यूज़ किया पोटेशियम आयोडाइड को। अब बात करते हैं कि फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए थोड़ा यहाँ से देखना, हम रिएक्ट किससे करेंगे, वी विल रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4. It is fluoroboric acid. The name is, I'll write here, fluoroboric acid. Clear? And the name of the reaction I'll write Bal-Schiemann reaction, BALSCHIEMANN, Bal-Schiemann reaction. So यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये H, अब इसको थोड़ा हटाते हैं बिकॉज वी हैव टू डिस्कस दिस रिएक्शन नाउ, N2Cl, दिस H एंड दिस Cl, ये निकलेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, -HCl, एंड आई विल गेट दिस, दैट इज N2, H और Cl निकल चुके हैं, तो यहां पे लगेगा BF4, N2BF4। व्हेन यू हीट द N2BF4, इस कंपाउंड को हीट करोगे जिसपे ऊपर हमने क्या अटैच किया हुआ है, N2BF4, तो यहां से सबसे पहले आपका नाइट्रोजन निकलेगा, जस्ट लाइक दैट, ये नाइट्रोजन प्लस बेटा BF4 में से आपका BF3 निकल जाएगा, एक फ्लोरीन बचेगा, दैट इज लाइक दैट। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी प्रिपेयर द फ्लोरोबेंजीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस पूरे आर्टिकल में अभी हमने नेम रिएक्शन कौन सी करी, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन, जिससे हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए। देन वी हैव डन आयोडोबेंजीन के लिए हमने पोटेशियम आयोडाइड को कराया, दिस इज नॉट अ नेम रिएक्शन। फिर फ्लोरोबेंजीन के लिए हमने वी विल यूज फ्लोरोबोरिक एसिड, जिसमें क्या हुआ, ये Cl और ये H निकला, -HCl, ठीक है। देन आई विल गॉट सिंपली N2 और ये BF4, दिस वन। फिर जब इसको हीट किया तो यहाँ से N2 आपका रिलीज हुआ, BF4 में से BF3 रिलीज हुआ, एंड आई विल गेट द फ्लोरोबेंजीन। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रिपरेशन कराई थी, अब उसका थोड़ा सा यूज करते हैं। सो आपको पता है कि आपने जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड था वो एनिलीन से बनाया था बाय द रिएक्शन दैट इज सेड टू बी द डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यानी ये जो N2Cl है ये कहाँ से बना, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनिलीन। हमने यूज क्या किया, वी हैव यूज्ड NaNO2 प्लस HCl। The reaction is said to be diazotization reaction, और इसमें जो हमारे बाई प्रोडक्ट मिले थे, द बाई प्रोडक्ट वी गॉट NaCl वाटर, सो -NaCl -H2O। रिमेंबर मैंने इसकी जगह एक और आपको ऑप्शन बताया था कि हम जो रिएक्शन कर सकते हैं दैट इज HNO2 प्लस HCl। अगर आप इससे करोगे, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था। चलिए यहां भी समझ लीजिए इसको, HNO2 प्लस HCl अगर आप करोगे, देन अगेन यू विल गेट बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो मेन क्या था इशू, अब इन रिएक्शंस को ना लिंक करते हैं। लिंक इन द सेंस
हमने एनिलीन से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन, यानी हमने एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन और एनिलीन से आयोडोबेंजीन। सिमिलरली वी कैन से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमने जो रिएक्शंस आपस में इकट्ठा करी है सो दैट हमारे कन्वर्जन्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। So student, this we have done the, you can say, second from benzene diazonium chloride or benzene diazonium salt. Now we will do the third method in which we will do the halogenation of benzene and its side chain. Side chain का भी करेंगे और उसका भी। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा थर्ड प्रोसेस। The third process is halogenation of बेंजीन रिंग। थर्ड को हम कहेंगे हलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, आल्सो सेड टू बी द न्यूक्लियर हलोजिनेशन, ठीक है, एंड साइड चेन हलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड साइड चेन। तो अगर आप साइड चेन का हलोजिनेशन करोगे इट इज सेड टू बी साइड चेन हलोजिनेशन। सो बेटा वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर हलोजिनेशन। फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर halogenation. So now let us see this. I have taken the benzene ring और बेंजीन पे एवरी कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, कोई एक हम दिखाएंगे फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट आई विल रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देन Br2 in presence of FeBr3, then I2 in presence of HiO3, then I2 in presence of HNO3, then I2 in presence of HgO. HgO is mercuric oxide. So these are the reactions जिसमें हम बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। दिस FeCl3 एंड FeBr3 मेंशन कर रहा हूँ। FeCl3, FeBr3 आर हालोजन कैरियर्स। तो रिएक्शन देखिए, एक H और एक Cl निकलेगा फर्स्ट रिएक्शन में, HCl। तो एक Cl बचा, वो हाइड्रोजन की जगह लगेगा, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। फिर से देखिए, दो क्लोरीन है, एक H और एक Cl निकलेगा HCl, और दूसरा Cl हाइड्रोजन की जगह लगेगा क्लोरोबेंजीन। सिमिलर नेक्स्ट रिएक्शन में Br2 है, तो एक Br और एक H, HBr, एंड हियर आई विल गेट ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब मैं आयोडोबेंजीन का थोड़ा केस आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर मैं डायरेक्ट आयोडीनेशन करता हूं किसका, I2 का। पहले समझना है इस चीज को, मैं यहां रफ में समझा रहा हूं। दिस इज द बेंजीन रिंग, ये H है। अगर हम इसका डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे, कोई इशू नहीं है उस चीज में, डायरेक्ट आयोडीनेशन में, ठीक है ना। तो आपका H और I निकलेगा माइनस HI, ठीक है ना। रिफ्लेक्स हम करेंगे यहां पे, सो ये आयोडोबेंजीन बनेगा। इस HI को मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो ये जो HI, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके आयोडोबेंजीन को दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट करेगा, यानी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, बैक डायरेक्शन में। तो अब इस रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में प्रिवेंट करने के लिए हम I2 में क्या क्या मिक्स कर सकते हैं। हम इसमें मिक्स कर सकते हैं 3 थिंग्स, HiO3, HNO3 एंड HgO। तो HiO3 क्या करेगा, देखिए ये आयोडीन और आयोडीन कंबाइन प्लस वाटर। अगर आप HNO3 यूज करोगे तो भी I से आयोडीन बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, और ध्यान रखो नाइट्रिक एसिड से NO2। और अगर आप बेटा मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज करते हो HgO, जहां इसकी वैलेंसी +2 है, प्लस HI, तो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा
यू विल गेट HgI2 प्लस वाटर। यानी इन तीनों ने क्या काम किया, ऑल थ्री दे हैव कन्वर्टेड द HI इनटू डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, अब ये HI बचा ही नहीं। फर्स्ट टू कंपाउंड ने इनको कन्वर्ट किया I2 में और HgO ने इसको कन्वर्ट किया HgI2 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमने तीनों डाले हैं किस लिए डाले हैं, सो दैट जो HI है वो इस आयोडोबेंजीन को दोबारा से बेंजीन में कन्वर्ट ना कर सके। प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सो जस्ट सी द रिएक्शन। तो फर्स्ट में रिएक्शन देखते हैं। तरीका बताता हूं कैसे लर्न करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने आयोडोबेंजीन लगा बनाया, ठीक है, तीनों केसेस में बना लीजिए। पहले प्लस HI लिख दीजिए, फिर उसकी जगह प्रोडक्ट हम चेंज कर देंगे। यहां पर भी आयोडोबेंजीन प्लस HI, हेयर आल्सो आयोडोबेंजीन प्लस HI। अब ये जो आपने HiO3 लिया है, ये HI को किस में कन्वर्ट करेगा, I2 प्लस वाटर। HNO3 HI को किस में कन्वर्ट करेगा, I2 प्लस वाटर प्लस NO2। HgO HI को किस में कन्वर्ट करेगा, HgI2 प्लस वाटर। तो ये बाई प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, देट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन F2 नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता। रीज़न बता रहा हूं, ये जो आपका FF बॉन्ड है एंड दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। FF बॉन्ड जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होने की वजह से इनके बीच में क्या होंगे, रिपल्शंस होंगे। वी आर हैविंग रिपल्शंस बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच जो बॉन्ड होगा बेटा, द बॉन्ड बिकम्स वीक, बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। और वीक होगा तो सिंपल जो आपका F2 होगा, इट इज यू कैन से highly reactive and it will be a एक्सप्लोजिव रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी ये, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रिएजेंट भी हमारे किसी काम का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं हो सकता, तो रीज़न आप क्या दोगे कि ये जो आपका FF बॉन्ड है ये बहुत ही छोटा बॉन्ड है। देखो छोटा होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बट रिवर्स केस है, यहाँ इसकी स्ट्रेंथ कम है क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है, बॉन्ड आपका वीक है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होगा, ये फ्लोरीन बहुत जल्दी मिलेगा और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्शन क्या होगी, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। दैट इज अ मेन पॉइंट। चलिए अब इसके बाद एक और विल डू सम मोर एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। चलिए वी विल नोट डाउन देम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, this is chlorobenzene, Cl2FeCl3, Br2FeBr3, I2HiO3, I2HNO3, I2HGO। क्लियर। अब देखिए बेंजीन पर पहले से ही क्लोरीन एटम लगा हुआ है, ठीक है। तो आप बेंजीन पे हैलोजिनेशन कहाँ पे करोगे, हमारी ये पोजीशंस बची हुई हैं, दीज पोजीशंस आर लेफ्ट, और हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जिसमें से बेटा ये दो पोजीशंस ऑर्थो, दीज टू पोजीशंस आर मेटा, एंड ये जो पोजीशन है ये आपकी पैरा पोजीशन है। अब आपका जो हैलोजिनेशन होगा वो किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पैरा पे होगा या मेटा पे होगा, ये डिपेंड करता है जो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो जो Cl की नेचर मैं समझा दूं, द नेचर ऑफ Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो एंड एक पैरा। यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थो प्लस पैरा, मीन्स वी कैन से जो आपका हैलोजिनेशन होगा इट अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब पता कैसे लगाएं, देखिए वैसे तो एक नॉर्मल वे तो ये कहता है कि इन द 11th वी हैव डन, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, बट हमारे पास एक छोटा शॉर्टकट है। अब इस Cl को देखिए, इस Cl में किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर मैं CH3 लगा देता हूँ,
ये क्लोरोबेंजीन था, प्रोडक्ट 2 बनेंगे ऑर्थो पैरा। अगर इस पे मैंने CH3 लगा दिया, अब इसमें भी किसी तरह का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी भी नेचर क्या होगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सिमिलरली कोई भी ग्रुप, अब ये मैंने फिनॉल लिया है, फिनॉल में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी भी नेचर क्या हो जाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको समझना क्या है कि अगर जो ग्रुप बेंजीन पे पहले से लगा हुआ है उस पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो उसकी जो नेचर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। द थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बाई प्रोडक्ट आपको पता है कि Cl और HCl, ठीक है। तो पहले में हम बाई प्रोडक्ट पहले बनाते हैं HCl। अब थोड़ा इसको वाइड करते हैं क्योंकि बड़े प्रोडक्ट हमारे बनेंगे 1 by 1। दिस इज HCl। तो ये जो क्लोरीन है, एक बार यहां से H और Cl निकलेगा ऑर्थो से, एक बार यहां से H और Cl निकलेगा, और क्लोरीन एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे। आई विल गेट दिस प्रोडक्ट Cl प्लस Cl। तो देखिए क्या चीज हुई है, आपको पता है H और Cl बनेगा, तो ये हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, एक ऑर्थो से और एक पैरा से, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये जो है पैरा वाला, इट इज मोर सिमेट्रिकल। अगर ये मोर सिमेट्रिकल है, सो दिस इज मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दिस प्रोडक्ट इज सेट टू बी द major product, and this other ortho product is now said to be the minor product. Now if we will do the reaction with Br2FeBr3, same HBr, देखो बैलेंसिंग पे मत जाइएगा, आपने सिंपल क्या देखा, Br2 का फंक्शन क्या है, Br2 से एक Br H से जुड़ेगा, HBr एक दूसरे से जुड़ेगा, तो Br2 का नंबर बढ़ सकता है। आपको बेसिक समझना है कि ये जो Br2 ये 2 काम करेगा, एक तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्या बनाएगा, HBr, और दूसरा ये काम क्या करेगा, जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर जाकर अटैच होगा। तो एक बार ये ब्रोमीन जो है ऑर्थो पे अटैच होगा, एक बार पैरा पे। आई विल गेट दिस, Cl पहले से लगा हुआ था, अब हमने Br2 डाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इट डज, Cl और ये बेटा Br प्लस ये Cl और ये Br, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, हमने रिएक्शन कैसे करी है, क्लियर। अब इसी में थोड़ा सा और करते हैं, जस्ट सी। Now if I'll give it to you this one, bromobenzene plus Br2 in presence of FeBr3, सो ये ऑर्थो और ये पैरा। सो एक बार ऑर्थो का हाइड्रोजन विद Br, एक बार पैरा का हाइड्रोजन विद Br माइनस HBr, और ये Br एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे। I will get this Br plus Br. This is ortho dibromobenzene, para dibromobenzene. This is more symmetrical, so this will be the major product because it is more stable. Clear? Now इसी कैटेगरी में अगर हम नेक्स्ट करके चले, विल डू द नेक्स्ट वन। तो सभी में आपने देखा कि जो ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करो वो किस पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। अब रिएक्शन करते हैं इसके साथ, देखिए ये बेटा CH3, दिस इज टॉल्वीन। अब यहां पर भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो जो टॉल्वीन की नेचर है वो क्या है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी यहां पर भी बेटा मेरे को 2 केसेस मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो मैं अगर रिएक्शन करता हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये ऑर्थो और ये पैरा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और Cl दे विल कंबाइन टू फॉर्म माइनस HCl निकलेगा आपका, HCl बनाएंगे। और एक बात जो क्लोरो है वो आपका
ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक बार वो लगेगा आपका पैरा पोजीशन पे। सो आईयूपीएसी नेम मैंने बताया था 2 क्लोरोटोल्विन, दिस इज 1 2 3 4 क्लोरोटोल्विन। कॉमन नेम ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, ऑर्थोमेटा, एंड दिस इज पैरा क्लोरोटोल्विन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट because it is more stable. Similarly, if I do the reaction with Br2 in presence of FeBr3, तो ऑर्थो और पैरा के जो हाइड्रोजन है वो Br से कंबाइन करके माइनस HBr निकालेंगे, ठीक है, और इन्हीं पोजीशंस पर आपके Br लगेंगे। सो यू विल गेट CH3Br प्लस CH3Br. This is 2 bromotoluene, this is 4 bromotoluene, this is ortho bromotoluene, this is para bromotoluene, and this will be the major product. Now if अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो I2 के साथ हमें क्या डालना है, HiO3। तो सेम हेयर, ये एक H ऑर्थो एक H पैरा I से जुड़ के माइनस HI बनाएगा। पहले इसको देखते हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है वो आपको देखना है, दैट इज CH3। एक बार आयोडीन ऑर्थो पे आएगा और बेटा एक बार आयोडीन आपका पैरा पे। अब ये जो आपने HiO3 डाला है ये HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस I2 प्लस H2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वी हैव डन, हमने किया भी था ये। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट लें, I2 में बेटा मैं HNO3 डाल देता हूँ तो आपको पता है माइनस HI निकलेगा और यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट्स। और ये जो HNO3 है HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 प्लस NO2 प्लस वाटर। क्लियर। और इसमें हमने एक और यूज किया था, वी हैव यूज्ड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सो I2 इन प्रेजेंस ऑफ HgO अगर मैं यूज करता हूं सेम प्रोडक्ट, अब यहां HI रिलीज होगा, HgO HI को कन्वर्ट करेगा HgI2 प्लस वाटर में, ठीक है। और इन सभी केसेस में बी रिमेंबर दिस पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। रीजन बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिकल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, हमने कैसे वर्कआउट किया है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। बी क्लियर कि आपका अगर पहले से एक ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है तो आपको उसकी नेचर चेक करनी है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट क्या था कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे, ऑर्थो और पैरा, जिसमें से पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो आपका माइनर। सो बेटा दिस वी हैव डन द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। Now we will do the side chain substitution, second part. Very important, side chain substitution. So just check कीजिए, side chain substitution में सबसे पहले हम I'll write the second one, side chain substitution. इसके reagents कौन कौन से हैं, ठीक है। सो इसमें पहले हम रिएक्शन करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ दिस इज द टोल्यूइन, ये आपकी साइड चेन है तो हैलोजिनेशन इस साइड चेन पे होगा। रिएजेंट्स Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu, देन I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, then we will use SO2 Cl2 in presence of sunlight with little amount of peroxide, and in the last we will use NBS in presence of sunlight with little peroxide. NBS, all of you know, it is N bromosucciniamide. NBS is N ब्रोमोसक्सिनियमाइड। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, CH2 CH2 CO CO, ये बेटा N और ये Br, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं HNu पर ऑक्साइड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पहली रिएक्शन करते हैं, एक H और एक Cl। फर्स्ट में HCl इज द बाई प्रोडक्ट, देन आई विल गेट
CH2Cl। बाई प्रोडक्ट बेशक यहाँ पर भी लिख सकते हो, या चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आई राइट प्लस HCl। सिमिलरली Br2 से करोगे तो H और Br प्लस HBr, I'll get CH2Br. The name of the first is benzyl chloride, second is benzyl bromide. अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -HCl। ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू जा सकती है अगर आप Cl2 को एक्सेस में लोगे, देन अगेन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक H और एक Cl -HCl, I'll get CHCl2 benzyl dichloride, again it will be Cl2 in presence of sunlight, एक H और एक Cl, I will get CCl3, that is benzo trichloride। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा हमने दो रिएक्शंस करी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर आप आयोडीन साथ करोगे, I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि H और I ये मिलके क्या बनाएगा, Hi, और ऊपर I will get CH2I, that is बेंजाइल आयोडाइड। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ HiO3, ये Hi को कन्वर्ट कर देगा I2 और वाटर में। अब बात करते हैं SO2Cl2, तो यहाँ पर SO2 रिलीज होगा एज अ गैस इस तरह से, प्लस दिस क्लोरीन एंड दिस HCl एज अ गैस। अब बचा क्या, एक क्लोरीन बचा जो यहाँ पे अटैच करो आप, यू विल गेट बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। नाउ N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ से एक H Br की जगह आएगा और Br इसकी जगह जाएगा, सो आई विल गेट CH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड, और ये H यहाँ पे लगेगा, प्लस आई विल गेट CH2CH2 COCONH सक्सिनी अमाइड। ठीक है, सो ये हमने रिएक्शन करी टॉल्यूइन के साथ। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट अस चेंज। सो इसको यहां से हटाते हैं सो दैट वील गेट सम अनदर थिंग। अब इन प्लेस ऑफ टॉल्यूइन आई विल टेक इथाइल बेंजीन, CH2CH3 इथाइल बेंजीन। तो मेन आपको बात ध्यान क्या रखने की, ये जो कार्बन एटम है जिसको मैं कैपिटल A लिख रहा हूं, दिस इज सेड टू बी बेंजाइलिक कार्बन एटम, और ये जितना भी साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है ये कहां पर होगा, बेंजाइलिक कार्बन एटम। एंड मेंशन हियर अकर्स एट बेंजाइलिक कार्बन एटम। चलिए चेक करते हैं, अकर्स एट बेंजाइलिक कार्बन एटम। सो बेटा अब ये वाला H निकलेगा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाला इस तरह से A, ये चीज, ये बेंजाइलिक कार्बन है, आगे वाले कार्बन से कोई मतलब नहीं। तो H और Cl, HCl प्लस प्रोडक्ट, अब देखिए दिस इज बेंजीन, ये CH, ये बेटा इस पे Cl, और आगे आपका CH3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, दिस कैन आल्सो बी रिटन, थोड़ा स्पेस अगर हम क्रिएट कर दें यहाँ पे, विल राइट, देखिए अब इसको, सो ये बेटा CH, इसी पे Cl और ये CH3, ठीक है, प्लस HCl। सिमिलरली अगर आप Br2 से करोगे तो ये वाला H और ये Br प्लस HBr, एंड आई विल गेट CH Br CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आयोडीनेशन करोगे देन यू विल गेट एक H और I, ये आपने HI बनाया, ठीक है ना, हेयर CHI और ये बेटा CH3, बेंजाइलिक कार्बन पे आयोडीन। अब HiO3 क्या करेगा, ये HI को कन्वर्ट करेगा I2 प्लस वाटर,
व्हेन यू डू द रिएक्शन विद SO2Cl2, तो बाई प्रोडक्ट आपको पता है SO2 गैस विल बी रिलीज्ड प्लस बेटा ये वाला H और ये Cl, HCl गैस विल बी रिलीज्ड। अब जो एक क्लोरीन बचा वो यहाँ पे लगेगा बेंजाइलिक कार्बन पे एंड आई विल गेट दिस वन CHCl CH3। नाउ इन द लास्ट N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, यहाँ से Br यहाँ पे लगेगा बेंजाइलिक कार्बन पे और ये H यहाँ पर आएगा, सो आई विल गेट दिस वन। प्लस CH2 CH2 CO NH। तो इन सभी रिएक्शंस में आपने क्या देखा कि जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रही है, बेंजाइलिक कार्बन पे, ठीक है, दूसरे कार्बन पे नहीं होगी। नाउ द लास्ट इन दिस कैटेगरी विल डिस्कस वन मोर सो दैट हमारे पास आर्टिकल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो। अब इन प्लेस ऑफ इथाइल बेंजीन इफ आई विल टेक दिस कंपाउंड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है A, तो यानी जितना भी आपका साइड चेन हेलोजिनेशन होगा इस कार्बन पे। तो लेट अस सी द प्रोडक्ट। अब ये H और ये Cl, HCl, व्हाट द प्रोडक्ट इज, और दूसरा Cl बेटा CCl CH3 एंड CH3। सिमिलरली Br2 में एक H और एक Br क्या रिलीज होगा, प्लस HBr and product I'll get this CBr CH3 CH3। in case of iodination ये H और ये I2 they will combine to form HI और ये iodine यहाँ पे लगेगा, I'll get this CI CH3 CH3। ना HiO3 क्या करेगा, ये HI को कन्वर्ट करेगा I2 प्लस वाटर में। ना SO2Cl2 में दो बाई प्रोडक्ट तो पहले लिख लीजिए आप, SO2 गैस HCl गैस। अब यहाँ से एक Cl बचा वो यहाँ पर आएगा, सो आई विल गेट दिस वन CCl, ये बेटा CH3 यहाँ CH3, या थोड़ा नीचे इसको ड्रॉ करते हैं जस्ट सी आउट, CCl CH3 Cl। ओके, नाउ N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड में ये H इस Br की जगह आएगा और Br इसकी जगह आएगा, सो आई विल गेट दिस वन CBr CH3 CH3, ठीक है बेटा, और ये H यहाँ पर आएगा, सो आई विल गेट सक्सिनिमाइड CH2CO CH2CONH, ठीक है। सो दिस वी हैव डन कि जो आपका यू कैन से साइड चेन हेलोजिनेशन है वो बेंजाइलिक कार्बन पे। अब हम किसी एक आयोडाइड का IUPAC नेम देखते हैं जो यहाँ पर बने हैं, सो दैट हमें कोई IUPAC में भी प्रॉब्लम ना आए। आपके मोस्टली प्रोडक्ट ये बने हैं कि C ये I, ये CH3 और ये CH3। अब ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये जो बेंजीन रिंग है इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आयोडाइड। तो अल्फाबेटिकली हम इस पहले लिखेंगे I को, सो दिस इज द चेन, आई विल राइट दिस इज द चेन 2 आयोडो बेटा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इसको लिखेंगे आयोडो, ठीक है, 2 आयोडो 2 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है, इसी तरह के नेम थे। नाउ दिस वी हैव डिस्कस द यू कैन से हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स साइड चेन। नाउ विल डिस्कस वन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द रस्चिक प्रोसेस। वेरी सिंपल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कमर्शियल और industrial, this is number 4 I'll mention here, industrial method of preparation. The method is Rustchig process. So in the Rustchig process we simply do the reaction of 2 molecules of benzene with 2 molecules of HCl and O2,
hydrogen chloride and O2 in presence of CuCl2 as catalyst, then what I get, simple देखिए, ये क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह क्लोरीन लगेगा, सो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड हाइड्रोजन, ये जितने भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर दैट इज ट्वाइस H2O. सो बाय दिस मेथड हमने डायरेक्टली बेंजीन को कन्वर्ट किया क्लोरोबेंजीन में. नाउ बेटा बिफोर आई क्लोज द लेक्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट आई नोटेड डाउन, जस्ट सी आउट. हेलो अल्केन्स जो हैं, हेलो अल्केन्स कैन ईजिली be prepared from alcohols by replacement of OH group with halogen. बेटा जो हमने हेलो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाए थे, तो हम सिंपल क्या करते थे अल्कोहल्स में, जैसे आपको थोड़ा मैं रिमाइंड भी करा दूं कि CH3OH से अगर मैं अल्कोहल बनाता था, सॉरी अल्काइल हैलाइड बनाता था यूजिंग कोई भी रिएजेंट, या रिएजेंट की बात नहीं करते, तो हम OH की जगह सिंपल क्या लगा लेते थे, Cl या कोई भी हलोजन हम इंट्रोड्यूस करते थे. ये काम हमने कर रखा है. तो ऐसा ही काम हम एराइल हैलाइड में भी कर सकते हैं, बट एराइल हैलाइड में ये पॉसिबल नहीं है. मीन्स अगर मैं एरोमेटिक एल्कोहल लूँ फिनॉल, तो फिनॉल से अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन बनाना है दिस वे, तो मैं इस OH को Cl से रिप्लेस नहीं कर सकता. फिर से देखिए, अगर आप एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे हो तो सिंपल आपने OH को Cl से रिप्लेस किया, बट एराइल हैलाइड अगर आपको बनाना है तो एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल जो है, दिस इज फिनॉल, उसमें मैं OH को रिप्लेस नहीं कर सकता हैलोजन से. लेट अस सी द रीजन. पहले हेडिंग कंप्लीटली नोट करते हैं. With halogen, but aryl halides cannot be prepared from phenols. But aryl halides cannot be prepared from phenols. Now see the students. सिंपल सा रीजन मैं पहले आपको एक बार, फर्स्ट वी विल डू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर होगा. ये आपका फिनॉल OH 1 2 3 4. सो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा. यू विल गेट द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज H. और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा इस पैरा पोजीशन पे. इसको अंदर से भी दिखा सकते हो या बाहर से भी दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है. चलिए, सो व्हाट विल आई गेट दिस. नाउ ऊपर कोई चेंज नहीं है, O 2 इलेक्ट्रॉन H और ये पॉजिटिव. जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा आई विल गेट अ डबल बॉन्ड. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, आई विल गेट अ नेगेटिव चार्ज दिस वन. अब फिर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो तो ये बॉन्ड इस कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा. देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड OH 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे, कोई फर्क नहीं, यहाँ नहीं. अब ये यहाँ पर आएगा तो आई विल गेट द डबल बॉन्ड. जब ये यहाँ शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज. लास्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पे. सो आई विल गेट द लास्ट स्ट्रक्चर दिस एज इट इज, दिस एज इट इज. ये जब यहाँ शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वापस चला गया तो OH में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन पे, अब उसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो न्यूट्रल. अब इस पूरे प्रोसेस में देखो, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है. फिनॉल में क्या है, जस्ट आई गिव यू द रीजन. इन फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. जबकि अगर आप अल्कोहल लोगे, ये आप कोई भी अल्कोहल ले लो CH3OH, तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड.
तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देयरफॉर इट कैन बी ब्रोकन इजीली, ये इजीली ब्रोक हो जाएगा। तो मेन रीजन क्लियर हुआ, फिनॉल या एरोमेटिक अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ब्रेक नहीं हो सकता। अब अगर पूछा जाए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किस वजह से, देन यू विल राइट ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर। सो बेटा दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर। इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी किए। पहले हमने स्टडी किया फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां हमने किया था बोरोडिन हुस्टिकर रिएक्शन। Then by benzene diazonium chloride, where we have done the 3 name reaction, Sandmeyer, Gattermann and Balsheman. Then we have done the halogenation of benzene and its side chain. इसमें ध्यान रखना है कौन कौन से रिएजेंट हमने डायरेक्ट हलोजिनेशन पर यूज़ किए और कौन से हमने साइड चेन में यूज़ किए। फिर हमने स्टडी किया इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहां हमने रस्टिक प्रोसेस को स्टडी किया। और लास्ट में हमने स्टडी किया कि एरोमेटिक अल्कोहल से हम क्लोरो ब्रोमो या आइडोबेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है ना, देयरफॉर हम इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इट कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स और हलोअरीन्स।